ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋਖਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ 58 ਸੂਤਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਰਹੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਰਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਐਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ NOC ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਸਰੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ तमाम तरीके नाल ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋ ਹੈਡ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4-5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਬਚੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਸਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਬਚੀ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਚੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਨੂਅਲੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ पंजाब पोल्यूशन बोर्ड को भी, लोकल बॉडी को भी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को भी तमाम तरह के दफ्तर चक्कर लाने पैंदे सी
और वो फिजिकल वेरीफिकेशन भी वो साइट की होंदी सी। उस चीज़ नूं भी खत्म करके मान साहब की सरकार ने जिहड़ा एनुअल रिन्यू होनी है इंडस्ट्री, जिहदे तकरीबन 7000 इंडस्ट्री होंदी है छोटी वड्डी पंजाब, उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ एक पोर्टल ते जाके रिन्यू की एप्लीकेशन पाउणी है तो आटोमैटिक उसकी रिन्यू हो जाए। तीसरी गल, जे किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने मान लो कोई इंडस्ट्री ला ली है, कंस्ट्रक्शन कर ली है और उहदे च कई तरह दियां वायलेशन हो रही हैं, चाहे इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट दियां चाहे पोल्यूशन बोर्ड दियां, उस मसले च फिर रिश्वत अगे आ जाती सी। मान साहब की सरकार ने जिहड़ी ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी आ उन्होंने दिता है वॉलंटरली डिस्कलोजर स्कीम। जे बंदा इंडस्ट्रीलिस्ट वॉलंटरली डिस्कलोज कर दे कि आ मैं वायलेशन की सी कंस्ट्रक्शन के दौरान तो आ मेरी उन्होंने एग्जम्पशन दी आ, उन्होंने सहूलत दी आ, आने वाले दिसंबर तक महीने जोड़ा आ किसी तरह की पेनल्टी जी नहीं लगूगी और अलाउ कर दिता जाऊगा। ये भी जोड़ा है ऑनलाइन सिस्टम है, ये भी कोई दफ्तर की खज्जल खराबी नहीं। चौथा, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक हेल्प डेस्क क्रिएट कर रहा है, नाल PSPCL। देखो दो ऐसे महकमे हैं जिन्हां को सब तो वध इंडस्ट्रीलिस्ट नूं वाह पैंदा है। उन्होंने हेल्प डेस्क जिहड़े आ उहदे ते भी जिहड़ी रिपोर्टिंग है सीधी CMD नूं है। इस हेल्प डेस्क ते जाके इंडस्ट्रीलिस्ट अपनी कंप्लेंट दर्ज करावे और उहदी जिहड़ी सोल्यूशन है वो CMD साहब ने आप करनी है। विचोलिया जिहड़ा सिस्टम है, जिहड़ा थलड़े लैवल तो लैके, मैं किसी डेजिग्नेशन का नाम नहीं लै रहा, लेकिन सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि हिस्सेदारी थल्लों लैके उपर तक किस तरह जाती सी, वो सारी जिहड़ी विचोलिया सिस्टम वो खत्म किया। वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करावे, उन्होंने जिहड़ी जिहड़ी लोड़ है वो इस तरीके नाल मान साहब की सरकार ने तय किया जिन्ने भी साडे फोकल पॉइंट है पंजाब दे, अगले 2 सालों सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारिया वैकेंसीज बिजली तो लैके सड़कों तक उन्होंने कंप्लीट करना है। किसी तरह की उत्थे असुविधा जी इंडस्ट्रीलिस्ट ना होवे, जिहड़ा उत्थे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ करके खज्जल खराबी होंदी सी वो भी खत्म करनी है। किसी तरह की उन्होंने खज्जल खराबी ना होवे इंडस्ट्रीलिस्ट जोन च। और ये जिहड़े फोकल पॉइंट है साडे, उत्थे उस फोकल पॉइंट च अगर किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने मान लो एक यूनिट लग्या, उन्हें एडिशनल यूनिट वधा लिया, मान लो सड़क पार है तो उहदे लई 2 मीटर लेने पैंदे सी। मान साहब की सरकार ने एग्जम्पशन दी है, एक बंदे दे अगर 2 यूनिट भी है सड़क पार करके उन्होंने दूसरा मीटर लैण की लोड़ नहीं है। एडिशनल बर्डन उहदे ते किसी तरह का फाइनैंशियल या जिहड़ी सो कॉल्ड रिश्वत जिन्हों कह सकते हैं वो देने की लौड़ नहीं है। और तकरीबन सारिया चीज़ों ऑनलाइन किया है परमिशनां ले। इस तरीके नाल जिहड़ा बिल्डिंग का बिलिंग साइकिल है, खास कर शैलर इंडस्ट्री होंदी है, शैलर इंडस्ट्री बिलिंग साइकिल, शैलर इंडस्ट्री तकरीबन 4-5 महीने चलती है पंजाब च। उस तो बाद जिहड़े सोलर प्लांट उत्थे लगे आ उन्हां दे बिजली का जिहड़ी प्रोडक्शन है, क्योंकि वो बिजली जिहड़ी उन्हें पैदा करनी उन्होंने इनकम हुंदी आ उस सोलर इंडस्ट्री वाले, उहदे च भी जिहड़ा इहदे च जिहड़ा पीरियड सीगा वो 1 अक्तूबर तो लैके 30 सितंबर तक सी, जिहदे तक करके बहुत सारिया कॉम्पलीकेशनस होंदियां सी। उन्होंने भी यूनीफॉर्मिटी कीती है जिहड़ा कि 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक बिलिंग साइकिल जिहड़ा आ 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक का मन किसी तरह की कॉम्पलीकेशन ना आवे, खास कर सैलर इंडस्ट्री वाले जिहड़ा सोलर प्रोडक्शन उहदी होनी आ उहदा जिन्नी उहदी खपत हो रही है, उस तो इलावा जो एडिशनल प्रोडक्शन वो कर रहा है वो पंजाब सरकार नूं देऊगा और पंजाब सरकार समय सिर उन्होंने पैसा देवे ताकि उन्होंने कोई कॉम्पलीकेशन ना होवे। ये उहदी सहूलत वास्ते कीता। एक इस तरीके ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है
जे किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने एडिशनल कंस्ट्रक्शन कर ली आ, मान लो जी ओनू अलाउड है कि इन्ने एरिए इन्नी कंस्ट्रक्शन करनी है पर्टिकुलर एरिए, और उस तो एडिशनल अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी यूनिट ने कर लिया तो उन्होंने पेनल्टी लगती सी 143 रुपए पर स्क्वेयर फिट। ये इंडस्ट्रीलिस्टां की बहुत वड्डी डिमांड सी कि इसका बहुत वड्डा एडिशनल बोझ है, तो मान साहब की सरकार ने तय किया एडिशनल कंस्ट्रक्शन जी विदाउट अप्रूवल, जी सरकार तो अप्रूवल तो बिना किसी इंडस्ट्रीलिस्ट ने की जी 143 रुपए पर स्क्वेयर फिट से उन्होंने पेनल्टी लगती सी, वो खत्म करके 20 रुपए पर स्क्वेयर फिट किया है, ताकि उसते एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन जिहड़ा आ किसी तरह ना पवे। इस तरीके नाल बिल्डिंग स्ट्रक्चर जिहड़ा आ, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाउण दा जिहड़ा कवर्ड एरिया उहदी परमिशन 40% तक सीगी पहला, चाहे उहदे चौकीदार दा कमरा है, सिक्योरिटी दा कमरा है, कार जिहड़ी अपनी पार्किंग दा जगह है, वो 40% जिहड़ा सीगा वो मान साहब की सरकार ने कंस्ट्रक्शन एरिया वधाता 65% तक, ताकि वध तो वध एरिया कवर करके वो बेहतर बेनीफिट जिहड़ा साडा इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़ा लै सके। ओवर टाइम लेबर क्लास लई मान साहब की सरकार ने जिहड़े 75 घंटे ओवर टाइम दे सीगे, जिहड़ा कि अंडर फैक्टरी एक्ट 1948 75 घंटे अलाउ सीगे लेबर क्लास नूं, वो वधाते 115 घंटे तक। 115 घंटे ओवर टाइम लेबर क्लास कर सकती, और इस इनकलूड किया है IT इंडस्ट्री, पहला वो इंकलूडिड नहीं सी, IT इंडस्ट्री इंकलूड नहीं सी। लेबर क्लास नूं एक्सट्रा जिहड़ा काम करना वर्किंग हार्स है वो 115 तो 115 घंटे कीते, जिहदे च इनकलूड किया IT इंडस्ट्री नूं, और साडे मोहाली च जिहड़ा आ IT इंडस्ट्री का बहुत वड्डा हब है। इस तरीके नाल वर्किंग वूमेन वास्ते होस्टलों का प्रोविजन मान साहब की सरकार लैके आ रही है। हमेशा इंडस्ट्रीयल जोन च, क्योंकि एक तो थोड़ा जा आउट ऑफ शहर तो हुंदा आबादी तो आपां, दूसरा जिहड़ियां साडीआं भैणां या बीबियां बच्चियां जिहड़ियां साडीआं कुड़ियां काम करदियां, उन्हां दे रहण लई उन्हां दी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नाल वर्किंग वूमेन होस्टल जिहड़ा आ, ये जिहड़े साडे चारे शहर है, इस तो इलावा भी हजे इनिशियल स्टेज ते मान साहब ने अमृतसर साहब, जलंधर, लुधियाना और मोहाली आइडेंटिफाई किया वर्किंग वूमेन होस्टल जिहड़े आ ये इत्थे बनाए जाणगे, ताकि उन्होंने परेशानी ना होवे और उन्होंने सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध हो। नाल नाल प्रॉपर्टी टैक्स नूं